Hello everyone, this is Pratibha Pandit from St. Andrews Institute of Technology and Management, Farooq Nagar, Gurugram. I am again here for delivering a lecture on inline theory. Today I will take all the numerical parts. It comes under Unit 7. This is my lecture number 8 on design of concrete structure 2. So today I will take all the numerical portion that comes under inline theory and mostly comes in the exams. So before starting this today's lecture, I just introduce about the inline theory. In my previous lecture, as I told you about inline theory, what is inline? Inline is a crack line which is generally formed in a concrete structure, due to some moment or due to some external load. Okay, so I will start numericals. So before starting some numerical portion, you should know some formulas. So what are those formulas? You can write all these formulas. You can write this table. Yield line analysis of slab. Type of slab आपका यहाँ मैंने mention किया हुआ है. Ultimate load of collapse. मतलब जो WU हम पढ़ रहे थे ultimate load, उसकी value डायरेक्टली हमें हर एक टाइप की स्लैब के लिए याद रखनी है. So you may write down these all type of formulas first before starting the numerical. So for one way continuous simply supported slab, WU is 8 mu by L square. For one way continuous simply supported slab, value of WU is 8 mu by L square. For one way continuous slab fixed along the edges with equal value of end moment, what is the value of WU? 24 mu by L square. Mu is the जो भी ultimate moment है, L is the span. Same isotropic reinforced slab के लिए आपको 24 mu by L square लेना है. Isotropic reinforced स्लैब के लिए आपको 24 mu by L square लेना है. आइसोट्रोपिक रेनफोर्स्ड स्क्वायर स्लैब के लिए आपको 48 mu square by L square. इस तरीके से आपको ये सारे फॉर्मूले लिखने हैं. मोस्टली 1, 2, 3 these are very important and used in the numerical. So you may write down all these formula. मतलब आप स्लैब कैसी भी हो सकती है ना. वन वे, फिक्स्ड एट वन एंड, फिक्स्ड एट बोथ एंड, कंटिन्यूअस है, फ्री है, सिंपली सपोर्टेड है. तो द वैल्यू ऑफ WU is changed for different type of cases. Now write down a numerical. Design a simply supported square slab of side 4 meter to support a service load of 4 kilonewton per meter square. Use M20 concrete Fe415 steel. ठीक है. एक सिंपली सपोर्टेड स्लैब का आपको यूज करना है. तो सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए आप देखिए फॉर्मूला क्या यूज किया हुआ है. 24 mu by L square. स्पैन स्क्वायर है स्लैब, तो साइड क्या होगी आपकी L is equals to 4. सर्विस लोड कितना है 4 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये मैंने लिख लिया. Fy जो स्टील है एंड कंक्रीट FCK. As per control of deflection, as we already know, L/D is less than 35. As control of deflection, as per IS 456/2000. ठीक है. So L की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी. स्पैन 4 मीटर मतलब 4000 mm by D is less than 35. ये स्टैंडर्ड है, आपको लिखना है. L is the span, D is the depth of the
slab and that should be less than 35 for simply supported square slab. ठीक है, as per IS 456/2000 clause. So इसको हमने जब सॉल्व किया तो यहाँ से जो डी की वैल्यू है वो 120 के अराउंड आई. तो हमने अगर इफेक्टिव कवर को 20 ले लिया यहाँ पे, तो जो ओवरऑल डेप्थ है उसको हम, मतलब आप ओवरऑल डेप्थ को 120 एज्यूम कर रहे हैं, तो आपकी जो इफेक्टिव डेप्थ जाएगी, आपने कवर को माइनस कर दिया, वो 95 mm निकल के आएगी. ये हम एज्यूम करते हैं. आपने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके आपका एक डी निकल के आया, उसके बेसिस पे आपने ओवरऑल डेप्थ को एज्यूम कर लिया 120 mm. मतलब जो स्लैब है उसकी जो ओवरऑल डेप्थ है, एक होती है इफेक्टिव डेप्थ, एक होती है ओवरऑल डेप्थ, एक होता है उसका कवर. तो ओवरऑल डेप्थ को आपने कितना लिया, 120. इफेक्टिव कितना हो जाएगा, 20. तो डी कितना हो जाएगा, 95. ठीक है. इसके बाद हम करते हैं इसकी लोड कैलकुलेशन. व्हाट इज द लोड कैलकुलेशन, सेल वेट ऑफ स्लैब. तो सेल वेट के लिए हमेशा हम इफेक्टिव डेप्थ का यूज करते हैं, या तो ओवरऑल डेप्थ का भी कर सकते हैं, या तो ओवरऑल डेप्थ का यूज किया है मैंने. तो ये 120 था, इसको मीटर में चेंज कर दिया, 0.12 into 25 इज द डेंसिटी ऑफ कंक्रीट. तो हमारा सेल वेट कितना आ गया, 3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सर्विस लोड आपका 4 ऑलरेडी दिया है. फ्लोर फिनिशिंग लोड लगभग हम 1 एज्यूम करते हैं. तो इन सबको ऐड कर दिया तो टोटल लोड आपका 8 आ गया. तो अल्टीमेट टोटल लोड के लिए आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करते हो, दैट इज 1.5. तो डब्ल्यू यू की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 12. ठीक है. तो डब्ल्यू यू आपका कितना हो गया, स्लैब पे जो भी लोड लग रहा है वो 12 हो गया, सबको ऐड करने के बाद, फैक्टर्ड करने के बाद. इसके बाद अल्टीमेट मूवमेंट बाय इनलाइन थ्योरी. इस सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए जो हमें फॉर्मूला यूज करना है वो क्या है, WU is equals to 24 mu by L square. 24 mu by L square. जब भी ये सिंपली सपोर्टेड एजेस का केस आए तो आपको यूज करना है 24 mu by L square. तो यहां से मैंने मोमेंट निकाल दिया, क्योंकि WU की कोलैप्स लोड की वैल्यू हमें पता चल गई. तो मोमेंट क्या आ गया, ये मैंने 12 यहाँ लिख दिया. एल हमारा 4 था, इसका 4 स्क्वायर बाय 24. तो mu की वैल्यू क्या आ गई, 8 किलोन्यूटन इनटू मीटर. तो रिक्वायर्ड डेप्थ डी, डी का फॉर्मूला क्या है, आप फॉर्मूला लिख लीजिए, मैं बोल रही हूँ, अंडर रूट m अपॉन आर यू इंटू बी. m क्या है, 8. इसकी यूनिट ठीक की, किलो न्यूटन को न्यूटन में किया और मीटर को mm में किया. तो 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई किया, अपॉन आर यू जो फैक्टर होता है जिसकी वैल्यू अलग अलग टाइप के रेट के लिए अलग अलग होती है. M20 F4.5 के लिए 2.76 लेते हैं, तो वो लिखा. पर यूनिट विड्थ के लिए हम डेप्थ निकालते हैं, पर मीटर तो 1000. तो ये क्या फॉर्मूला लिखा है, अंडर रूट m अपॉन आर यू इंटू बी. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 54 आएगा, दैट इज लेस देन 95. इसका मतलब हम जो लेके चल रहे हैं कैलकुलेशन वो ठीक है, हेंस इट इज ओके. ओके, देन हमें इसके बाद क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्टील. आपको ये समझ में आ गया हो तो आप आगे बढ़े. एरिया ऑफ स्टील, इसके लिए हमारा जो मोमेंट है उसका हम फॉर्मूला लगाएंगे. एरिया ऑफ स्टील के लिए क्या है, मोमेंट 0.87 F by AST D अंडर रूट 1 माइनस F by AST अपॉन FC के B into T. ओके. तो m की वैल्यू क्या है, जो आपने 8 निकाली, इसकी मैंने यूनिट यहाँ पे न्यूटन mm में कर दिया. 0.87 F by स्टील 415 दिया, AST में निकालना है, D 95 है, FY की वैल्यू रख दी, AST FC के आपका 20, B पर यूनिट विड्थ के लिए निकालते हैं, और D आपका 95 जो स्मॉल d आपका आया था वो रख दे. यहाँ से आपने AST को सॉल्व किया तो ये आ गया 247 mm स्क्वायर. ठीक है, EST रिक्वायर्ड आ गया ये. तो EST प्रोवाइडेड हम हमेशा 0.12% लेते हैं. 0.12 डिवाइड बाई 100, हमेशा B इंटू डी, मतलब जो विड्थ एरिया है B इंटू डी का 0.15%. तो स्टील, ये स्टील जो होता है ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में 0.15% एज पर IS को हम प्रोवाइड करते हैं. तो B 1 मीटर मतलब 1000 mm इंटू डी,
ओवरऑल डेप्थ 120 का 1.15% मैंने निकाला, तो ये भी क्या आ गया 144 mm स्क्वायर, विच इज लेस देन दिस रिक्वायर्ड एरिया. ओके, so this is okay. Here we use 8 mm diameter bars. अगर 8 mm की हम बार यूज करते हैं तो उसकी स्पेसिंग निकाल लेंगे. स्पेसिंग कैसे निकलती है, एक बार का एरिया 8 mm के हिसाब से 50 इंटू बी अपॉन AST रिक्वायर्ड. तो स्पेसिंग यहाँ पे 202 mm आ गई, तो हमें 8 mm के बार 200 mm की स्पेसिंग में बोथ डायरेक्शन में प्रोवाइड करने होंगे. ये आप समझ लीजिए 8 mm का एक बार. और नंबर ऑफ बार के लिए आप क्या करेंगे, AST रिक्वायर्ड अपॉन AST प्रोवाइडेड. रिक्वायर्ड कितना है 144 और प्रोवाइड कितना कर रहे हैं 247, तो नंबर ऑफ बार भी निकाल सकते हैं. स्पेसिंग का ये फॉर्मूला है. ये लिखा हुआ है A5 इंटू बी अपॉन AST रिक्वायर्ड, तो आपकी ये स्पेसिंग 202 मीटर आ गई. तो ये इस टाइप का एक न्यूमेरिकल था. हम एक डायरेक्शन में स्पेसिंग के साथ डायमीटर का बार निकाल देते हैं, उसी तरीके से दोनों में प्रोवाइड कर देते हैं. तो आप इसे देख लीजिए, इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले हमने कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन की हेल्प से स्मॉल डी और कैपिटल डी निकाला, फिर लोड कैलकुलेशन की, फिर मोमेंट की हेल्प से मोमेंट का फॉर्मूला निकाला. ओके, फिर मैंने मोमेंट की से एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड निकाला और फिर स्पेसिंग वगैरह निकाला. नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल यू मे राइट डाउन. Determine the collapse load for a square slab fixed all around the edges with following data. Size 5 into 5. Reinforcement 8 mm diameter at the rate of 150 mm center to center in both directions. Total depth 130 mm. Effective cover 30 mm. Use M20 concrete and Fe415 steel. ठीक है, ये है आपका न्यूमेरिकल. आप दोबारा से इस न्यूमेरिकल को लिख लीजिए. तो अगर हम यहाँ पे आते हैं तो आप देखिए कोलैप्स लोड, इसमें आपको कोलैप्स लोड निकालना, उसमें आपको उसको डिजाइन करना था. या कोलैप्स लोड का मतलब है WU आपको फाइंड करना है. ठीक है, और टाइप ऑफ स्लैब क्या है, स्क्वायर है, फिक्स्ड है चारों एजेस पे. साइज दिया है, डायमीटर दिया है, डेप्थ दिया है, कवर दिया है और ग्रेड दिया है. तो स्मॉल एल क्या है, स्मॉल एल 5 दिया है. ठीक है, आप AST रिक्वायर्ड निकालें तो AST क्या हो जाएगा आपका, AST रिक्वायर्ड A5. अगर आप 8 mm का बार सपोज यूज कर रहे हैं, आपने सपोज एक्चुअली ये न्यूमेरिकल में दिया है, तो AST रिक्वायर्ड कैसे निकलेगा, A5 आप ये क्या निकाल रहे हैं, AST रिक्वायर्ड A5 इंटू B अपॉन स्पेसिंग. ठीक है, क्योंकि स्पेसिंग का फॉर्मूला यही होता है ना कि A5 इंटू B अपॉन AST रिक्वायर्ड. तो आप AST रिक्वायर्ड अगर स्पेसिंग दिया तो उसकी हेल्प से निकाल सकते हैं. तो ये आ गया 333 mm स्क्वायर. ओके, एंड कैपिटल D कितना दिया, 130 आपको दिया है. इफेक्टिव कवर 30 दिया है, तो ये आपका 100 क्या हो गया, स्मॉल डी. स्मॉल डी आपका 100 निकल के आ गया. ठीक है, जस्ट अ मिनट. FC के आपका 20 दिया है. कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट FY आपका 415 दिया है. यहाँ पे हम मोमेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, दिस वन. तो ये क्या हो जाएगा 0.87 FY 0.87 FY AST D1 माइनस AST FY FC के B इंटू D. आपने सारी वैल्यू इसमें पुट कर दी. AST रिक्वायर्ड 333, D कितना है आपका, D भी गिवन है, इसको 1000 कर लीजिए. सॉरी नहीं, स्मॉल डी आपका गिवन है ना, 130 माइनस कवर स्मॉल डी ये 100 ही है. 100 1 माइनस AST 333 FY अपॉन FC के B हमेशा हम लोग 1000 लेते हैं इंटू D. इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू ये आएगी. ठीक है, फिर आप निकालेंगे MU लिमिट. MU लिमिट का मतलब होता है कि ये मोमेंट तो एज पर द कंडीशन आ रहा है. MU लिमिट मैक्सिमम मोमेंट कितना हो सकता है, तो इसका फॉर्मूला हमें यूज करना है RU इंटू BD स्क्वायर.
आरयू क्या है, M20 Fe415 के लिए आरयू की वैल्यू 2.76 होती है, b इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, तो mu का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, 2.76 bb स्क्वायर, 2.76 b 1000, d आपका कितना है, स्मॉल डी कितना है आपका 100 का स्क्वायर है, ये 1002 नहीं है, ये 100 का स्क्वायर। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका 27.6 इंटू 10⁶ न्यूटन mm आ गया। तो आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो mu लिमिट आपका mu से ज्यादा आ रहा है। ठीक है, मतलब जितना हमारा मोमेंट आ रहा है उससे भी मोमेंट ज्यादा है, मतलब जो सेक्शन है वो अंडर रेनफोर्स्ड है। ये कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी कि mu लिमिट इज ग्रेटर देन mu अंडर रेनफोर्स्ड, mu लिमिट इज लेस देन mu ओवर रेनफोर्स्ड। ठीक है, तो हम कोलैप्स लोड के लिए यहाँ पे जो मोमेंट यूज करेंगे वो करेंगे मैक्सिमम वाला, जो कि हमारा ये आया है, ये वाला 11.192 इंटू 10⁶। तो यहाँ पे जो हमारा मोमेंट है उसकी हेल्प से कोलैप्स लोड क्या आएगा, मोमेंट मैंने मोमेंट रख दिया, डब्ल्यू हमें निकालना है, एल हमारा 5 था, स्पैन और 40 है। तो यहाँ से जो कोलैप्स लोड सॉल्व होकर आ गया वो क्या हो गया, 21.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले हमें mu लिमिट और mu को कंपेयर करना है। अगर ये हम देखते हैं कि mu लिमिट की वैल्यू mu से ज्यादा आ रही है, मींस दैट सेक्शन इज अंडर रेनफोर्स्ड। अब आपने ये फॉर्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि आप चार्ट में देख लीजिए, ये देखिए, आइसोट्रॉपिकली रेनफोर्स्ड स्क्वायर स्लैब फिक्स अलोंग द एजेस, ये वाले कंडीशन फुलफिल हो रही है। यहां से आप डब्ल्यू ये कोलैप्स लोड का फॉर्मूला आप यूज करते हैं। ठीक है, तो आप इसको पूरी तरीके से लिख लीजिए, कर लीजिए। इस टाइप के न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं डायरेक्टली फॉर्मूला, आपको कुछ नहीं करना है। आपने एएसटी रिक्वायर्ड निकाला स्पेसिंग की हेल्प से, फिर डी स्मॉल डी आपको गिवन था, आपने मोमेंट निकाला, मोमेंट फिर लिमिटिंग से आपने कंपैरिजन किया, फिर आप मोमेंट को लेते हुए यहाँ पे आपने कोलैप्स लोड फॉर्मूले की हेल्प से निकाल दिया। Now the next numerical is determine the permissible service load for a rectangular slab of size 4 meter into 6 meter and depth as 150 mm, which is simply supported on all the edges and reinforced with 10 mm bar at the rate of 150 mm center to center in shorter direction and 10 mm bar 10 mm bars at the rate 200 mm center to center in longer direction. Take effective cover is 25 mm. Use M20 concrete Fe415 steel. ये वाला न्यूमेरिकल हम और लेते हैं, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, लिख लीजिए। साइज ऑफ द स्लैब इसमें दे रखा है 4 इंटू 6 मीटर। ठीक है, एल कितना दिया है आपको, 6। ठीक है, इस केस में जब भी ये डिफरेंट हो, लाइक रेक्टेंगुलर स्लैब हो, तो आप स्मॉल एल जो है वो 6 दिया है और अल्फा एल मतलब विड्थ ले लिया, अल्फा एल वो 4 दिया है। ठीक है, कैपिटल डी भी यहाँ पे गिवन है आपको, कैपिटल डी ये गिवन है आपको, डेप्थ एज 150 mm which is simply supported on all the edges, तो कैपिटल डी एंड डेप्थ दिया हुआ है, नहीं तो इफेक्टिव डेप्थ दिया होता तो स्मॉल डी गिवन होता। ये सिर्फ डेप्थ लिखा है इसलिए 150 आपका कैपिटल डी है, तो स्मॉल डी हम अपने आप यहाँ पे कवर को 25 एज्यूम कर लेंगे, आप 20 भी कर सकते हैं। तो स्मॉल डी कितना आ गया, 125 mm। ओके, इतना मैंने अभी इस न्यूमेरिकल में किया है, आप इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आगे सॉल्व करती हूँ। ठीक है, इसके बाद ठीक है, अभी मैंने एल और अल्फा एल लिख लिया। अब हम एएसटी लॉन्गर डायरेक्शन के लिए अलग निकालते हैं, यहाँ पे शॉर्ट के लिए अलग निकालते हैं। क्यों, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर होता तो हम एएसटी एक ही बार निकालते। मतलब आप ऐसे समझिए, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूड दोनों डायरेक्शन के लिए हमें एएसटी की वैल्यू निकालनी है। तो एएसटी लॉन्गर डायरेक्शन के लिए A5 अपो इनटू बी बाई स्पेसिंग, A5
आप न्यूमेरिकल में देखेंगे तो आपको जो लॉन्गर स्पैन है उसके अलोंग स्पेसिंग 200 दी हुई है और शॉर्टर स्पैन के अलोंग स्पेसिंग 150 दिया। पर मीटर के लिए निकालते हैं तो 1000 1000 10 mm की सपोज हम लोग बार यूज कर रहे हैं, उससे हम एएसटी रिक्वायर्ड यूज कर रहे हैं। आप यहाँ पे एक लाइन और लिख सकते हैं, सपोज वी आर यूजिंग 10 mm डायमीटर बार्स इन बोथ द डायरेक्शन। तो हमने एएसटी लॉन्गर स्पैन के लिए निकाला जो 392 mm² आ गया और शॉर्टर डायरेक्शन के लिए निकाला। एफ बाई एफ सी के आपको क्वेश्चन में गिवन है। ओके, नाउ अल्टीमेट मोमेंट कैपेसिटी इन शॉर्टर स्पैन के लिए मोमेंट MUX निकाल दीजिए और लॉन्गर स्पैन के लिए MUY। अलग अलग मोमेंट निकलेगा ना, क्योंकि दो डायरेक्शंस हैं, मतलब रेक्टेंगुलर स्लैब है। तो इसके लिए फॉर्मूला सेम मैंने यूज किया, 0.87 F बाय AST D 1 माइनस F बाय AST FC के B into D। ठीक है, तो लॉन्ग आप शॉर्टर के लिए तो शॉर्टर वाला आप मोमेंट की यहाँ पे AST यूज किया। ठीक है, D स्मॉल डी आपका 125, ऊपर आपने स्मॉल डी निकाल लिया था वो आपने लिख दिया, अपॉन 1 माइनस AST FC के B डी सारी वैल्यू रख दी, MUX की वैल्यू निकल के आ गई। सेम लॉन्गर के लिए आप लिखिए, लॉन्गर के लिए आपने मोमेंट ये यूज किया है वो आपने यहाँ लिख दिया। डी आपने लॉन्गर के लिए जो डी था वो आपने यूज किया। यहाँ पे ये इसको आप 125 कर लीजिए, 115 नहीं है। ओके, ऑल द थिंग्स आर सेम, अपना जो मोमेंट है वो आपको लेना है, तो MUY निकल के आ जाएगा। ठीक है, दोनों डायरेक्शन में आपने मोमेंट निकाल लिया। अब ये जो स्लैब है, एज इट इज एन ऑर्थोट्रोपिक स्लैब, तो MUY आपका म्यू MUX के बराबर हम लेते हैं। ये एक हमें फॉर्मूला याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो रेक्टेंगुलर स्लैब होते हैं उनके लिए मोमेंट सेम नहीं होता है, एक म्यू एक कॉफिशिएंट ऐड हो जाता है, दोनों में जो डिफरेंस होता है। तो आप MUY की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, MUX की यहाँ रख दीजिए, यहाँ से म्यू की वैल्यू आपकी निकल के आ गई, डेट इज 0.701। ठीक है, अब हम MU की वैल्यू, जो ये तो इंडिविजुअल डायरेक्शन में मोमेंट था, एक MU की वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे WU अल्फा स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन 24 अंडर रूट 3 प्लस म्यू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा अंडर रूट म्यू का होल स्क्वायर। ओके, अल्फा L आपका 4 था, L आपका 6 है क्योंकि 6/4 का स्पैन था, तो अल्फा की वैल्यू 0.66 ये आपने यहाँ लिख दोगे। M की वैल्यू क्या है 21.55। M कितना है आपका MU, जो भी मैक्सिमम वाला मोमेंट होगा हम उसे लेंगे यहाँ पे। तो 21.55 इसकी यूनिट चेंज कर दी, न्यूटन mm में चेंज कर दे। W आपको निकालना है, अल्फा आपका यहाँ से आ गया L स्क्वायर बाई 24, म्यू की वैल्यू आपने ये रख दी, अल्फा यहाँ से निकल के आ गए, सारी वैल्यूज रख के WU की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं ऑर्थोट्रोपिकली रेनफोर्स स्लैब के लिए, आपको याद रखना है। फिर WU जो आपको निकल के आया, ये फैक्टर निकल के आएगा इस फॉर्मूले से, इसको मैंने 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये W की वैल्यू आपकी लोड की निकल के आ गई है। ओके, कोलैप्स लोड, तो हमें इसमें कोलैप्स लोड ही पूछा था, तो ये न्यूमेरिकल यहाँ पे एंड हो जाता है। आप इसे पूरा नोट कर लीजिए। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जो भी रेक्टेंगुलर स्लैब दी उसकी लेंथ और विड्थ लिख ली, फिर शॉर्टर और लॉन्गर स्पैन के अलोंग AST रिक्वायर्ड निकाला, दोनों डायरेक्शन के अलोंग मोमेंट निकाला। ठीक है, फिर म्यू निकाला, फिर इस फॉर्मूले ऑर्थोटोपिकली फॉर्मूले की हेल्प से हमने मोमेंट यहाँ पे जो मैक्सिमम वाला होगा उसकी हेल्प से अल्फा की वैल्यू निकाली, अल्फा, और बाद में हमने इसको अल्टीमेट लोड निकाल दिया। So this is all the type of numerical that are under inline theory. So thank you very much guys. If you have any problem, any doubt, you can contact me anytime, send me the message. I will take more problems about this topic.